So, good afternoon. Welcome you all to this seminar on topic Chartered Accountants and Fees for Professional Assignments. I, CA Gaurav Garg, Vice Chairman, Gautam Budh Nagar Branch. Welcome you all. I also welcome our speaker, CA Asim Trivedi sir. So, as you all know that nowadays we Chartered Accountants are confused as to how much fees we should charge for various assignments. It can be audit, tax filing, or any other matter. So we there is always fear in our mind that if we charge much more fees, then the client will run away from us. So I believe that till we provide quality services to our client, the client will always be with us. So we have amongst us our speaker, CA Asim Trivedi sir, who shall discuss this topic in detail. I welcome you, sir. CA Asim Trivedi sir is a fellow member of ICAI. He is specifically known in the country for his weekly column Jama Punji in Hindi national daily newspaper Patrika. He has vast experience in the field of Companies Act, Accounting and Auditing Standards, and New Companies Act 2013. He is author of bestsellers books on Caro 2020 and Schedule 3 for CA Professional, published by LBH, a publisher. He had delivered more than 1800 seminars on ICAI platform. He is recognized national speaker on topic of company law, accounting and auditing standards, and IFRS and Companies Act. He is member of task force to revise expert advisory opinions in year 2000. He is co-opted member of CAS LB under Accounting Standard Board 2006. He is convener of group constituted to convergence with IFRS under ASB in year 2010. He is appointed as trainer for IFRS in ASB of ICI in 2010. He is also appointed as a group leader to define the term accountancy by ASB in year 2013. He was group leader at Indore in revising the Code of Ethics in year 2018. He was appointed as trainer by Ethical Standard Board ICI for faculty development program on Code of Ethics in year 2019. He has been special invitee to Committee of Board of Studies ICI New Delhi to finalize the syllabus of Code of Ethics in CA final in year 2022 under new course. So I welcome you, sir. Thank you. So without taking much time, I now hand over the charge of the session to our eminent speaker, C. Asim, sir. Thank you very Welcome, much. sir. Thank you, Ethical Standards Board and especially Chairman Anuj Bhai, who is always in hunt of new topics. This time, he gave me a topic that have some talk about fees, because fees is something which is most least talked about topic. सबसे कम बात जो है वो फीस पर ही होती है. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं फीस पर, तो क्या हम फीस डिसाइड करने जा रहे हैं? ना जी, फीस डिसाइड करने का काम करने वाला मैं कौन होता हूँ? सारी काउंसिल मिलकर मिनिमम फीस डिसाइड करने में परेशान हो रही है. एक रिवाइज्ड मिनिमम रिकमेंडेशंस जो दी गई थी वो आपके सामने है, और ये मेरा ख्याल है सभी के पास होगी, और नहीं होगी तो आशीष भाई भिजवा देंगे. तो आज जो हम बात कर रहे थे वो फीस के डिटर्मिनेशन की ही नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट फीस एंड हाउ वी कैन चार्ज फीस एंड अप टू व्हाट अमाउंट वी कैन चार्ज फीस. सो आवर कोड ऑफ एथिक्स clearly mentions various provisions relating to fees. So let's start how our charging of fees is hurting our independence, is interfering with our independence. So the today's topic is all about fees and ethical requirements.
how ethically we can charge fee, how fee can interfere with our independence, how fees can interfere with our quality, how fees can impact our office culture, how fees can impact our clients, how fees can impact ourselves. तो जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हमारा पहला क्लाइंट आता है और पहले क्लाइंट से हमारे फीस का नेगोशिएशन होता है। और हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबका ये एक्सपीरियंस रहा है कि पहले क्लाइंट को या तो हमने बहुत ही ज्यादा फीस चार्ज कर दी थी या बहुत ही कम फीस बोल दी थी। क्योंकि बाद में ये डायलेमा हुआ जरूर था कि यार इसको ज्यादा फीस बोल दी है इसलिए ये नहीं आया, या इसको कम फीस बोल दी है या तो गया है, और इसको अगर अपन ज्यादा फीस बोलते तो भी चल जाता। एवरीवन हैज दिस काइंड ऑफ डायलेमा व्हेनेवर इट इज फर्स्ट टाइम। जब भी हम पहली बार फीस की बात करते हैं तो ये अक्सर देखने में आता है कि इन केस ऑफ फीस देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम कि कहीं ना कहीं एक डायलेमा सा होता है हम सभी में, और वो कहीं ना कहीं फीस को अफेक्ट करता है। धीरे धीरे हम फीस चार्ज करना सीख जाते हैं। अब हम फीस हमारे शहर में कितनी चार्ज करते हैं, तो हम अपने अपने शहरों में फीस अपने अपने शहर की तासीर के हिसाब से ही चार्ज करते हैं। दिल्ली में बैठे लोग दिल्ली के हिसाब से चार्ज करते हैं, इंदौर में बैठे हुए लोग इंदौर के हिसाब से चार्ज करते हैं, जयपुर में बैठे हुए लोग जयपुर के हिसाब से चार्ज करते हैं। हर शहर की एक तासीर होती है और हर शहर में एक परंपरा होती है। अब ये परंपरा जो होती है, ये भी बड़ी अलग सी बात होती है। हर शहर में जो चुनिंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुआ करते थे शुरुआत से, जिन्होंने उस शहर को चार्टर्ड अकाउंटेंसी से परिचित करवाया है, बहुत कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है ये कल्चर जो फीस का है। अगर मैं बात करूं तो पुराने जमाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थे, उनके फीस चार्ज करने का जो तरीका था वो अमूमन वैसे ही था जैसा वकीलों का। दे वर चार्जिंग फीस as per their wish, as per their discretion, as per their command. They were commanding the client and they were charging the fees. क्लाइंट उनके पास से ना जाए, ये उनका पूरा, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक पूरा एक बेसिक होता है यार, क्लाइंट हमारे पास होना चाहिए। अब उस खींचतान में जो आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते गए, उन्होंने उस फीस को थोड़ा सा डाइल्यूट किया सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द क्लाइंट्स। विडंबना यह है कि क्वालिटी बढ़ाकर क्लाइंट अट्रैक्ट करना और फीस कम करके क्लाइंट अट्रैक्ट करने में से हमारी एक जनरेशन ने चुना फीस कम करके क्लाइंट अट्रैक्ट करना। और आज की जनरेशन जो आई है, वेरी हैप्पी टू से, जो न्यू जनरेशन है, जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेल टू डू फ्रॉम देयर फैमिली एंड दे आर चार्जिंग हैंडसम फीस विद देयर क्लाइंट। बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर giving more qualitative service to the client and they are charging very handsomely. They are using AI, they are using professional, they have all such professional guts to charge that particular fees. तो एक जनरेशन जिसने प्रैक्टिस उस शहर में शुरू की, उसने अपने स्टैंडर्ड सेट किए। दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन जो आई कंप्यूटर से पहले की, उस जनरेशन ने उस सिटी में अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए फीस में कुछ कम ज्यादा करके किया। फिर भी कुछ लोग रहे जिन्होंने फीस को हमेशा एक लेवल पर माना। और
चलते गए। अब एक जनरेशन आई जो कंप्यूटर वाली थी, तो फिर फीस में एक उछाल आया। अब एक वापस से जनरेशन आई जो एआई वाली होगी, ये अपनी फीस में उछाल डालेगी। तो जब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो रहा है हमारे प्रोफेशन के अंदर, फीस का रिवाइवल नहीं हो रहा है, ये मान के चले। मतलब 1990s 1960 से लेकर 1990 तक एक फीस स्ट्रक्चर रहा, 1990 से लेकर 2015 तक मैं बोलूंगा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहा, और अब 2015-18 के बाद से जो एआई आना चालू हुआ, 2020 के बाद से, पोस्ट कोविड ही मान लें अपन, तो पोस्ट कोविड फी स्ट्रक्चर एक अलग फी स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। इसमें इंडियन इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बीच में तो कुछ ईयर्स ऐसे रहे थे जब इकोनॉमी ही उतनी ज्यादा बूमिंग नहीं थी, तो डेफिनेटली फीस का एक लफड़ा हुआ था। लेकिन more or less fees is something which is always a subject matter of debate। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, फीस के बारे में चर्चा होती रहती है। हमारे जयपुर से रघुवीर पूनिया जी हैं, वो लगातार हम लोगों को बोलते रहते हैं उनके सोशल मीडिया के माध्यम से कि फीस हैंडसमली चार्ज करो, कम काम करो, क्वालिटेटिवली काम करो, फीस अच्छे से लो। नाउ इम्पोर्टेंट इज, मैंने पहले भी कहा कि आप जब अपने केबिन में बैठे हैं तो वो केबिन आपका कुरुक्षेत्र है। दैट केबिन इज योर वॉर फील्ड। आप वहां पर भगवत गीता को स्मरण करते हुए बहुत क्लियरली ये ध्यान रखें कि सामने बैठा हुआ जो बंदा है वो ना आपका रिलेटिव है, ना वो आपकी जान पहचान वाला है, ना ही वो आपका फ्रेंड है, वो एक क्लाइंट। अगर आपने क्लाइंट में फ्रेंड देखा, अगर आपने क्लाइंट में रिश्तेदार देखा, अगर आपने क्लाइंट में कोई भी इमोशनल एंगल देखा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैम्पर द फीस। मैं पहला आधा घंटा जो बात कर रहा हूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनसे मेरी बात चार्ज, जो हैंडसमली फीस चार्ज करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो ये उन उस बातों के का सार है। पहली बात, बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आपके समाज के लोग आकर आपको कहते हैं कि भाई साहब ये धर्मार्थ संस्था है, आप इसका ऑडिट कर दीजिए, तो उनको ये जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि वे धर्मार्थ संस्था चला रहे होंगे, मैं यहाँ धर्मार्थ संस्था नहीं चला रहा हूँ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, one has to be very clear on that we are not at all running a charitable entity। बिल्कुल नहीं। क्यों? आप मुझे बताइए, क्या एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के प्रति चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी में रत्ती भर भी कमी है? जस्ट टेल मी व्हाई वी चेंज अवर एटीट्यूड towards those clients who are non for profit making organization? Is there little bit change in our responsibility as an auditor? If there is going to be fraud, or if there would have been a fraud, or if subsequently it was found that there is fraud, now tell me, if subsequently there is fraud in that particular organization, will your non taking fees or less taking fees anyway going to impact your professional liability? Not at all. So mind it very clearly। आपका क्लाइंट गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, इन्फ्लुएंशियल हो, नॉन इन्फ्लुएंशियल हो, सोशल हो, कमर्शियल हो, वो क्लाइंट है। आप उससे मोह मत रखो, क्योंकि अगर आपने उसकी फीस कम चार्ज की
तो मैं आपको एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर इतने सारे केसेस बता सकता हूं जिसमें ट्रस्ट एंटिटीज के अंदर कैजुअली काम किया गया क्योंकि उनकी फीस बहुत कम थी, और उस कैजुअल काम करने के जो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आए हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में आए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी कम फीस चार्ज करने से आपकी डिसिप्लिनरी एक्शन में कोई कमी होने वाली नहीं। आपके कम फीस चार्ज करने से आपकी किसी प्रोफेशनल लाइबिलिटी की कमी होने वाली नहीं। आपकी कम फीस चार्ज करने से वो क्लाइंट खुश होकर आपको 4 क्लाइंट देने वाला नहीं। आपकी कम फीस चार्ज करने से आपकी पब्लिसिटी होने वाली नहीं। आपके कम फीस चार्ज करने से आप फेमस होने वाले नहीं। दूसरे प्रोफेशनल कलीग आपको फेमस होने नहीं देंगे, और आप एक सिंपल से ऐसे चार्टर्ड अकाउंट जो टर्नओवर पे काम करता है, खुद काम करता है, 2-2 बजे तक जागकर काम करता है, लास्ट डेट पर मर मर के काम करता है, और फीस भी चार्ज नहीं कर पाता है। कब तक? नेगोशिएशन अगर हमने अपनी ही फीस के लिए नहीं किया तो कैसे काम चलेगा? टेल मी। यू हैव टू डिटरमाइन योर पर आवर कॉस्ट। आप पहले अपने ऑफिस की पर आवर कॉस्ट निकाल लीजिए। मेरे ऑफिस को अगर मैं छोड़ दूं तो मैंने मेरी पर्सनल कॉस्ट निकाल के रखी है। अदर देन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इफ एनीबडी वांट टू कॉल मी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लेक्चर और एनीथिंग, आई विल चार्ज 10,000 रुपीज पर आवर। इससे नीचे आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट डू सो। इट इज वेरी वेरी क्लियर। You have to work for 8 hours in a day, और अगर आप अपनी प्रैक्टिस का नेट प्रॉफिट, आप बताइए आपको अपना नेट प्रॉफिट कितना चाहिए? अगर आपकी प्रैक्टिस करीब करीब मान के चलिए 10 साल पुरानी है, तो आपका नेट प्रॉफिट कम से कम एक बढ़िया सीईओ सीएफओ के बराबर तो होना चाहिए ना। यानी मैं 60 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट तो मानूं। आप लोग हंसने लग जाओगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 48 से 60 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अगर मैं इंदौर में बैठकर नहीं कमा रहा हूं मेरी 10 साल की प्रैक्टिस के बाद, तो मेरी फीस की चार्जिंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे को 4 लाख रुपए पर मंथ अगर मैं टेक होम नहीं लेके जा रहा हूं, तो इससे बेटर था कि मैं कहीं जॉब कर लेता तो मेरे को 4 लाख रुपए पर मंथ मिल जाते। इतना बड़ा हाथी चलाने के बाद भी अगर मैं 4 लाख रुपए पर मंथ घर लेकर नहीं जा पा रहा हूँ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप कहीं ना कहीं सोचिए ना इसको कि ये कहाँ जा रहे हैं हम। 12 लाख रुपए साल के नेट प्रॉफिट के लिए मैं इतना बड़ा हाथी चलाऊंगा क्या? टेल मी वन थिंग। और अगर आपको 4,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट ले जाना है, यानी आपको 4 लाख रुपए महीना लेकर के जाना है, और आपको 26 दिन काम करना है, और आपको उन 26 दिनों में भी दिन के 8 घंटे काम करना है, तो 1,000 रुपए प्रति घंटे से नीचे अगर हम फीस चार्ज कर रहे हैं, तो सर हम चैरिटी कर रहे हैं। फिर आप भूल जाइए कि आप अपनी प्रैक्टिस को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मेरा सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, आप अपने घर में पर मंथ कितने ले जाना चाहते हैं? सर मैं 5 लाख ले जाना चाहता हूँ। आप 5 लाख को 26 से डिवाइड कर दीजिए। आपको पर डे 20,000 रुपए कमाने हैं, और पर डे 20,000 रुपए कमाने के लिए अगर आप 6 घंटे अपने ऑफिस में बिताते हैं, तो आपको 3,000 रुपए पर घंटे चार्ज करना पड़ेगा। इट इज सो सिंपल। 3,000 रुपए पर आवर आपका खुद का घर का टेक अवे। मैं भी ऑफिस एक्सपेंसेस इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, इसमें आप अपने ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ लीजिए। इसके बाद आप 100 रुपए में पैन नंबर भर दीजिए,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 रुपए में जीएसटी का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 रुपए में रिटर्न भर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 31 हर लास्ट डेट पर रात को 3 बजे तक जूझिए और फिर घर पे जाके बोलिए कि 12 लाख रुपए की कमाई हुई साल भर में, 1 लाख रुपए महीना। आप पर लोग हंसेंगे कि भाई साहब इससे तो जॉब कर लेते, सीए हो गए। हम हमारी ही कॉस्टिंग नहीं लगा रहे, पूरे जमाने की कॉस्टिंग देख के बैठे हैं। अगर हम यूनाइटेडली सब मिलकर अगर इसको फॉलो कर लें, आप ये देखिए पार्टनरशिप डीड बनाने में हमारा कितना टाइम लगेगा। पहले 1 घंटे की तो मीटिंग हमारे क्लाइंट के साथ होगी, उससे हम समझेंगे कि भाई पार्टनर कौन कौन हो, क्या क्या चाहते हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, ये वो 50 चीजें। उसके बाद 3 घंटे में एक ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट बनने के बाद सामने वाले को दिया जाएगा, फिर वो आएगा, वो 4 चीज निकाल के लाएगा, फिर 1 घंटा बैठ के जाएगा, फिर फाइनल होगा। मतलब क्लाइंट के साथ ही 3 घंटे निकल गए। बाकी तो अपने आर्टिकल्स ने जो काम किया उस पार्टनरशिप डीड को बनाने में वो किया। तो एटलीस्ट 5 घंटे अगर पार्टनरशिप डीड बनाने के लिखे हैं, तो इंस्टीट्यूट ने 15,000 रुपए ए ग्रेड सिटी में, 10,000 रुपए बी ग्रेड सिटी में और सी क्लास सिटी में 8,000 रुपए लिखे हैं। तो क्या गलत लिखे हैं? टेल मी वन थिंग। सम मैंने सुना है ये बीच सेमिनार में, मैंने ये सुना है कि इनको क्या है, ये तो कुछ भी इमेजिनरी फिगर लिख देती इंस्टीट्यूट की कमेटी। तो इंस्टीट्यूट की कमेटी इमेजिनरी फिगर नहीं लिखती है, इंस्टीट्यूट की कमेटी बिल्कुल सही फिगर लिखती है। और इंस्टीट्यूट की कमेटी ने पार्टनरशिप डीड विद कंसल्टेशन एंड टैक्स एडवाइजरी लिखा हुआ है। अरे सर, पार्टनरशिप डीड तो पार्टनरशिप डीड है, क्या है, छाप के तो देना है। एक कॉपी वर्ड की निकाली, इधर से निकाल के इधर छापी, उसमें 4 पार्टनर के नाम बदले और खत्म। सर, हमारे पार्टनरशिप डीड ऐसे नहीं बनती। मेरे पास अगर पार्टनरशिप डीड बनाने क्लाइंट आएगा, तो सबसे पहले मैं उसको बोलूंगा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम पार्टनरशिप एट विल बनाओगे कि पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाओगे। फिर उसको समझाइए आपकी पार्टनरशिप एट विल क्या होती है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस। फिर उसे समझाइए कि अब आप ये बताइए कि आपकी पार्टनरशिप डीड में डेथ के क्लॉज में क्या लिखना है, इंसॉल्वेंसी के क्लॉज में क्या लिखना है, रिटायरमेंट कैसे होगा ये बताइए, एक्सपल्शन का प्रोविजन डालना है कि नहीं डालना है, डिस्प्यूट के केस में आर्बिट्रेशन का क्या करना है, फर्म अगर इलीगल हो गई तो क्या करना है। वी हैव सो मेनी क्लॉजेस, and with each clause we need to discuss with client, not only for charging fees, it is for his education also. Once he will be educated about his partnership deal, he will definitely going to pay regards to you. अदरवाइज आप बोलोगे आप तो आ जाना, छाप के दे दूंगा। 1 घंटे में वो आया, उसके पहले तो पार्टनरशिप डीड तैयार थी, बोला आओ आओ चाय पियो साइन करो और जाओ। अब आप 5,000 भी चार्ज करोगे तो ही वॉन्ट पे यू रिगार्ड्स कि यार आपने कोई काम किया है। हम हमारे खुद के क्लाइंट की नजरों में कब खड़े होंगे? इतना नॉलेज होने के बाद भी हम कॉलेज क्लाइंट से अगर नॉलेजेबल बात नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे बताइए। अगर क्लाइंट आकर मेरे केबिन में प्रॉपर्टी की बात करेगा, अगर क्लाइंट आकर मेरे केबिन में शेयर की बात करेगा, अगर क्लाइंट आकर मेरे केबिन में बात करेगा क्रिप्टो करेंसी की, तो हाँ, वो क्लाइंट है, उसको उतनी ही अकल है। वो रियल एस्टेट, शेयर और क्रिप्टो करेंसी के अलावा कुछ जानता नहीं है। पर मैं क्यों भूल रहा हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं उससे बोलूंगा सर अपन आपके धंधे की बात करें, ये तो सब ठीक है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के बैठता है, हम और ऊपर से चालू हो जाते हैं, हाँ ये क्यों, व्हाई, हाउ डेयर अ क्लाइंट कैन सिट इन माय केबिन एंड टॉक अबाउट वॉट एवर ही जस्ट लर्न ओवर व्हाट्सएप, and why I should talk about cryptocurrency, why I should talk about share market, why I should talk about real estate when he came to me for what partnership deed। वो साला 50 तरीके की बातें करके जा रहा है, चाय पी के जा रहा है और खाली एक पेपर तो उसके साइन करवा लिए गए, ये पता ही नहीं चल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में हमने किया क्या है। ही नेवर कम टू नो व्हाट वी डिड। इफ दिस इज अ वे ऑफ डूइंग प्रैक्टिस,
then I must say your fees is enough. 1,000 rupees आपने कुछ किया भी नहीं उससे, सिर्फ बकर बकर किया और कुछ किया नहीं. You just talk with him in such a fashion and that's okay. How? How can we negotiate? No, we can negotiate currency. Our currency is our knowledge. How can we negotiate with the client without knowledge? By having these kind of talks. Filing forms with registrar of firms. You need to have 7,000 more. Over and above that, whatever we have described in the deed. 1 year later, he comes, supplementary modification in partnership deed. Need to have 12,000 rupees and above. I have to redraft your whole modification and all deed. Joint development agreement. I am saying this 12,000 is very less. I should say it is bare minimum. Joint development agreement. Can you imagine the profit margin of that client? और उसके ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का एक भी क्लॉज अगर इधर उधर हो गया और कोई कानूनी पेंच फंसा तो मुझसे और आपसे ज्यादा फीस वकील साहब ले जाएंगे. हाउ कैन वी फॉरगेट दिस? ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर हमारा कितना पकड़ है, ये जीएसटी और इनकम टैक्स और इतने सब पे हमने इतने सीपी सेमिनार अटेंड किए हैं और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर हमारा डॉक्टरेट हो चुका है और हम क्लाइंट को उस ज्ञान का 5% भी नहीं समझा सकते कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कितनी चीजें और कितनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उससे ये कहिए कि सर मेरे पास जब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करवाने आप आ रहे हैं ना, तो आप दोनों पार्टीज जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं कृपया आए मेरे केबिन में बैठे, कम से कम 2 घंटे ये मीटिंग चलेगी. दैट्स एन एटीट्यूड एंड दैट्स अ रिक्वायरमेंट. To have a joint development agreement between two persons who are investing crores of rupees in them, how can't we have at least 2 to 3 hours meeting with them? Call them in our office rather to go to their office. No problem. If they are unable to come, go to their office. But say it would be at least 2 to 3 hours meeting. Prepare a draft joint development agreement and then ask them what kind of clauses you want to have, what kinds of clauses you want to have, what are the pros and cons of that joint development agreement, what are the pros and cons over what are the impacts over the GST, what are the impacts on the tax liability, how the tax liability and GST is going to impact both of them. Sometimes someone comes and says, सर आप तो मेरे फेवर के सारे पॉइंट डाल दो, वो तो किसान है उसको कुछ भी नहीं आता. Sir, again, ethically, if we are developing a joint development agreement, even if that particular person is a farmer, call him. Let him sit before us. We will talk with him in a very mild language, in a language which he can understand. Everybody can understand his profit and loss. Nobody can say, सर वो तो किसान है उसका क्या है आप तो कर दो. आपको क्या मालूम कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर उस किसान का अंगूठा लगा है कि किसी और का अंगूठा लगा है. Sometimes is very problematic thing. Some fraudulent cases were filed in Indore itself where chartered accountants have been called to verify whether that joint development agreement which you have entered into in your as your witness are there. So who was there to it? How can I sign as a witness, or how can my staff can sign as a witness? That is very important. Na? Know your client. So both of them your client. Joint development agreement is there. Both of them are going to sign on it. We are mediating between them. So it's very important. And sometimes arbitration may we are the arbitrator only.
So in that case, if we are charging 12,000, so I'm saying no, it's not enough. We need to charge more in case of joint development agreement and joint venture agreement, because these agreements are pivot. These agreements are pivot of their business. These agreements are going to lay foundation for their business. Why to charge only 12,000? Will just give minimum fees 5,000. Drafting of a will. I have drafted one of the will of a businessman who is having net worth roughly 500, 600 crores. Can you imagine how many sittings both of us required? There were 8 sittings, and 8 sittings with me only, because that's a very confidential matter from his side. He says, Asim Bhai, you should sit with. No, neither your assistance is allowed in that room, nor my assistance will assistant is allowed in this room. सिर्फ चाय वाला चाय रख के जाता था, नाश्ता रख के जाता था. कॉन्फिडेंशियल रूम. 3-3 घंटे की मीटिंग हुई है. आप मान के चलिए 20 से 22 घंटे लगे हैं उस विल को ड्राफ्ट करने में. इतनी मेटिकुलसली विल ड्राफ्ट करवाई है उन्होंने. हाउ शुड आई चार्ज 5,000? दैट इज इम्पोर्टेंट. कितना इनपुट हम दे रहे हैं फीस के लिए. कोड ऑफ एथिक्स में मैं आऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी आर चार्जिंग. नाउ वी आर हैविंग इनकम टैक्स, filing of return of income tax, filing return of income with salary, other sources, share of profit. जैसे ही किसी ने देखा 8,000, दे आर सेइंग क्या बात कर रहे हो, ये कोई फीस होती है? 8,000, 6,000, 4,000. आप उसका एनुअल इनकम स्टेटमेंट तो निकाल के देखिए सर, क्या सर्कस किया उसने म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन कर करके हमारा आर्टिकल परेशान है. उसके म्यूचुअल फंड का टोटल प्रॉफिट तो देख लीजिए, उसके इनकम टैक्स का टैक्स तो देख लीजिए, उसके टीडीएस जो कटे हुए हैं वो तो देख लीजिए, उसकी इनकम तो देख लीजिए. उसके बाद देखिए कि 8,000 काम का है या नहीं. और अगर सामने वाले को कैपिटल गेन हुआ है और डिटेल्ड कैपिटल गेन वर्किंग लग रही है, इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन वाली टोटल, तो वो फीस दी हुई है 17,000. ए क्लास सिटीज में, बी क्लास सिटीज में 12,000, सी क्लास सिटीज में 8,000. People are saying that they are high. I am saying they are not high. They are bare minimum. अगर हम इससे कम चार्ज कर रहे हैं तो फिर हमारी गलती है, बहुत बड़ी गलती. सर वो चार्ज कर देगा, मैं नहीं चार्ज करूंगा. तो मैं 8,000 बोलूंगा तो कोई 4,000 में कर देगा. सर वो करते रहे ना, आपको क्या दिक्कत है. आज भी इस दुनिया में एप्रोप्रिएट फीस देने वाले क्लाइंट मौजूद है. जो आपको आपके एप्रोप्रिएट फीस नहीं दे सकता, वो आपके लायक नहीं है. उसके लायक कहीं और कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स फिलोसॉफी. बहुत बहुत क्लियर फिलोसॉफी. मेरे लिए ये क्लाइंट बना हुआ ही नहीं है अगर ये मुझे 8,000 रुपये नहीं दे सकता है इनकम टैक्स के रिटर्न के फाइल करने के. तो ये क्लाइंट किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बना होगा, मेरे लिए तो नहीं बना है. मेरे लिए बना होगा, कोई ना कोई क्लाइंट आएगा, क्यों नहीं आएगा. लेकिन जो 4,000 रुपये में रिटर्न फाइल कर रहा है, और जो 6,000 रुपये में रिटर्न फाइल कर रहा है, और जो 8,000 रुपये में रिटर्न फाइल कर रहा है, जो 8,000 बोल रहा है उसे 8,000 जैसी सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी. 8,000 रुपये
जैसी सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी। क्यों नहीं देनी पड़ेंगी? क्या आपके ऑफिस में, अब मैं बताता हूँ, 8,000 रुपए की सर्विस के लिए क्लाइंट कब हाँ करता है? आई नो वन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज चार्जिंग 10,000 रुपीज फॉर अ रिटर्न फॉर सॉफ्टवेयर salaried employees who are having a certain income, and they all are software engineers. Now, what kind of services he is giving? Ready Reckoner contains various tax provisions in very simple language and implications over the tax service. He educates them through his monthly newsletters. If your client is receiving monthly newsletter of his interest, there are so many firms who are issuing monthly newsletters to their client, but it's a common newsletter, common for all. No, sir, customized newsletter for salaried employees. बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल को लगा के रखा हुआ है। महीने भर में सैलरीड एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी अच्छे आर्टिकल्स हैं उनकी एक समरी बनाओ, उस समरी को न्यूज़लेटर में डालो, और वो न्यूज़लेटर हर महीने ईमेल होगा, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय। कौन से म्यूचुअल फंड्स ने क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस दिया, इसकी रिपोर्ट के लिए एक आर्टिकल लगा हुआ है, वो एनालाइज करके डाल देता है ये म्यूचुअल फंड्स के, इन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसी से रेट। फिर एक आर्टिकल आ जाता है कि इस वक्त किस तरीके के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने वक्त तक करना जरूरी है या इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, स्टील सेक्टर में ज्यादा है, ऑटोमेशन सेक्टर में ज्यादा है, निफ्टी में क्या करना है क्या नहीं, एक छोटा सा कॉलम उसका चला जाता है। अब आप बताइए कि एक बंदे को मंथली, भले वो न्यूज़लेटर पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसे ये दिखता है कि कुछ कलरफुल आया है मेरे मोबाइल, और उसमें सारे डायग्राम बने थे कि यहाँ रिटर्न ज्यादा है, यहाँ रिटर्न ज्यादा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, कौन सा मार्केट क्या कर रहा है, इंटरनेशनल शेयर मार्केट क्या कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जितनी भूख होती है, अब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर हो जाता है और वो बोलता है मेरे को ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं करना, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को अपडेट भेजते हैं। जब वो अपने कलीग को बताता है कि देख मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का न्यूज़लेटर पढ़, एंड व्हेन दैट कलीग इज रीडिंग दैट न्यूज़पेपर सिटिंग इन यूएस, he says, yeah, just give me number of your chartered accountant, I want to shift my chartered accountant. My chartered accountant is doing nothing, he's just filing return, yeah. He's not educating me anyway. He's just filing return, $2,000. How much he's charging? $10,000. No problem at all, boss. I need some education. एक लेवल ऊपर जब एम्प्लॉयज होते हैं जो सीईओ सीएफओ लेवल पे हैं, डेवलपर लेवल पे हैं, प्रोग्रामिंग लेवल पे हैं, जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, आप उनको भी 500 800 हजार रुपए में हाकेंगे तो वो दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड ना। आप क्यों जा रहे हैं पीवीआर लाउंज में मूवी देखने के लिए? क्यों जा रहे हैं आइनॉक्स कोटक में? क्यों जा रहे हैं आप? वाई यू आर नॉट गोइंग इन अ सिंपल? पिक्चर तो वही है, डायलॉग्स भी वही है। एक्सपीरियंस, when a peop when a when your client is at above certain level, he needs experience, and we have to give him that experience. क्यों नहीं देंगे एक्सपीरियंस? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस कितनी बड़ी चीज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के 15 साल बाद भी एक्सपीरियंस को याद किया जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस, वो क्यों बंद हुई, उसके क्या कारण थे, उनके क्या मिसमैनेजमेंट थे, हम वो क्यों सीखें? हम ये क्यों नहीं सीख सकते कि आज 15 साल बाद भी हम इंडिगो में बैठ के किंगफिशर को याद करें कि यार क्या दिन थे यार। हेडफोन मिलते थे, नैपकिन्स मिलते थे,
सब कुछ मिलता था, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या है ये, पैर नहीं रख पा रहा हूं मैं। बट दैट इज, आपका भी तो क्लाइंट है, आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि आप उसको एक एक्सपीरियंस दो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक्सपीरियंस हम कम फीस में तो दे ही नहीं पाए। वी नीड वेरी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, कि उसको एक एक्सपीरियंस रहे कि मेरा क्लाइंट अलग है। अच्छा, आप मुंबई के अंदर जाइए, और मैं टॉप 25 फर्म्स की बात करूं, एवरीवेयर आई फाउंड दैट दे आर एजुकेटिंग द क्लाइंट, एवरीवेयर, whomsoever is on top, he's educating the client. Unless and until we are not educating the client, we are not giving him experience, how can we charge more fees from client? It's very important. So these fees includes that experience cost which we are going to give him. Now एक सिंपल सा न्यूज़लेटर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है ये मैंने आपको बता दिया। इनहेरिटेंस टैक्स यूएस में लगता है। आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट इज माइग्रेटिंग टू यूएस, आप उसको यूएस से रिलेटेड एक लिटरेचर क्यों नहीं पकड़ा देते हो? नाउ यू आर गोइंग टू यूएस, काइंडली मेक श्योर these are the hardships in US. Before making any decision of purchasing anything or getting something in inheritance, as your father, mother are there and you are going there and you are inheriting certain property, there is an inheritance tax. Don't do that. Kindly consult me before taking any kind of a decision. Why should we not give him some kind of FEMA kind of things? Why cannot we advise him that वहां पर आप जब बैठोगे ना यूएस में, आपको कोई ना कोई बोलेगा कि इंडिया में यहाँ पैसे लगा दो, आज यू आर एनआरआई, अब आप जब एनआरआई हो गए हो तो आप ये ध्यान रखना कि आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस रूट से जाना चाहिए। Why we are not educating him? Still filing the return of his rental income of house at Indore and not bothering about whatever he is earning at US. Ultimately, he is going to repatriate that in India whenever he comes. टाइम ही नहीं है सर, इतनी बातें थोड़ी कर पाएंगे क्लाइंट से, इतना सारा काम है हमारे में, वही बोल रहा हूँ, काम कम करो। क्वालिटी काम तो यहीं से आएगा ना सर, एक्सपीरियंस तो यहीं से देना पड़ेगा ना सर। आई वॉज टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ओके, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन, फाइलिंग ऑफ अपील्स, सेकेंड अपील, अपील बनाने में कितना टाइम लगता है? वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये अपील वाली फीस तो बहुत कम है। जो लोग अपील का काम कर रहे हैं वो बोलेंगे यार ये क्या है, 65,000 तो मैं केस सुनने के ले लेता हूँ, वो लोग ये बोलेंगे। हाँ, आप मान के चलिए, मतलब फाइल टेबल पे आई तो भाई कितने की डिमांड है भैया? आप 1.5 करोड़ की, 50,000 रुपए तो सिर्फ फाइल टेबल पर आके मैं सुनने के लूंगा केस। आप आओ, 1 घंटा अपन बैठेंगे, क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा वो मुझे नहीं मालूम है। आप तो पहले आओ, केस समझाओ, केस की समरी और केस में कैसे आगे बढ़ना, मैं तो उसके पहले 50,000 ले रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि मैं केस में क्या करने वाला हूं और इसके कितने चांसेस हैं। सुनने के 50,000 हैं। इस लेवल पर एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, जिन्हें आश्चर्य करना है, अचरज करना है, वो जिंदगी भर आश्चर्य और अचरज ही करेंगे। बहुत क्लियर है। 100 200 रुपए के रिटर्न भर के 65,000 की सैलरी की अपीलेट ट्रिब्यूनल वाली बात करना,
बहुत अलग बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे अपील बनाने में क्या सर, आपको 1 घंटा लगेगा? बेटा, 1 घंटा अपील बनाने की स्किल डेवलप करने के लिए मैंने 600 घंटे लगाए हैं पहले, तब जाकर 1 घंटे में अपील ड्राफ्ट होगी। तो मेरे उस 600 घंटे के इन्वेस्टमेंट जब मुझे कोई फीस नहीं दे रहा था, तो मैं कहाँ से वसूलूंगा? मैं आप ही से तो वसूलूंगा। मैं 1 घंटे में अपील तैयार कर दूंगा, लेकिन जिस ग्राउंड पे मैं तैयार करूंगा उस ग्राउंड को समझने के लिए 600 घंटे दिए मैंने अपनी पूरी लाइफ की क्यूमुलेटिव। उसके बाद जाकर ये समझ आई। आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए। आप जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, पहले दिन से तो आप एक्सपर्ट थे नहीं। क्लाइंट आए, क्लाइंट फंसे, क्लाइंट को वहां से निकाला, एक एक्सपीरियंस मिला, फिर एक सेमिनार हुआ वो अटेंड किया, कॉन्फ्रेंस हुई वो अटेंड की, फिर कपिल गोयल जी आए, राकेश मित्तल जी आए, इन लोगों ने आकर के हमको अलग अलग केस समझाए, इन्होंने अपने केस बताए, हमने केस डिस्कस किए, ब्रांच लेवल पे स्टडी सर्कल मीटिंग की, वहां पे ये समझा। तो सर ये सब टाइम खर्च हुआ है, इसे वसूलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेमिनार की फीस वसूलनी है, मैं ये कह रहा हूँ ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हमने किया है इतनी मेहनत से, फिर एक केस में हम फंसे, फिर हमने सीनियर से बात की, फिर वो सीनियर ने हमको बुलाया, हम उनके ऑफिस गए, उनसे 1 घंटा डिस्कशन किया, फिर उन्होंने कोई केस निकाला, फिर हमने कोई केस निकाला, फिर उस केस पे डिस्कशन हुआ, फिर जाके ग्राउंड बना। 20,000 रुपये में अपील फाइल कर देंगे क्या? सर नहीं होगा। इतना तो केस सुनने के लगेंगे। एक क्लास सिटी में करोड़ों रुपए की डिमांड के लिए अगर 50,000 रुपए केस सुनने के भी नहीं लिए जा रहे, तो अपील क्या खाक लड़ी जाएगी? तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर वो आप एक कुछ भी कर लो, वो इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू सेटिस्फेक्शन, इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू स्टेटस, इट विल नॉट गोइंग टू गिव यू अ स्टेचर, इट विल नॉट गोइंग टू sharpen your knowledge. And see, I'm just giving you one example here. 10 days before, one fellow chartered accountant asked me, Asim bhai, I need opinion on land ceiling act of Madhya Pradesh. My entity want to have an agricultural land of 100 acres for their project. So can we have special purpose vehicle for having acquisition of that land 100 acre? What are the land laws of Madhya Pradesh? We want to know. I said, boss, I'll give you opinion. No problem. But my fee will be at least 50,000 for giving such an opinion. Sir, how much time it will take? I said 2 days to 3 days. Hardly. On SMS, I can show you that SMS. He says, is this fees is final? I said, it is you. That's why it is final. This is the only fees for giving opinion. Otherwise, I'm not going to invest my 3, 4 hours for that. This is required. Minimum fees charging is required. And when a matter comes to you where you know that out of 100 chartered accountant, you are the only chartered accountant who knows how to answer it, then your fee should be more than those 100. Otherwise, if you say, सर वो आदमी 25,000 में कर रहा है ना, अगर मुझसे अगर वो बोल देते कि सर ये 25,000 में वो कर देंगे, तो मैं उनको बोल देता आप उनसे करवा लो। और फिर मैं ये सोच लेता कि अब ये जो नॉलेज मेरे पास है ये डिवैल्यू हो चुका है, इसकी मार्केट में वैल्यू 25,000 है। तो अब मुझे इस नॉलेज को और अपग्रेड करना है,
और अब मुझे इस नॉलेज के अंदर कुछ ऐसा निकाल के लाना है जो 25,000 वाला नहीं निकाल सकता। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25,000 में वो इसके ऊपर ओपिनियन दे देगा, लेकिन इस एक्ट में अभी भी बहुत कुछ है जो उसके ओपिनियन में नहीं आएगा। एंड आई विल से हिम that whenever you receive an opinion, just give me that opinion. I will go through it. I'm not going to charge anything with you, but just give me that opinion, what you are taking from there. You just go and take that opinion. No problem at all. My fees is 50,000. If he's doing in 25,000, just do it. But just let me know what opinion, what kind of opinion is given by him. Then I will evaluate the opinion and mind it very carefully. I'm not going to tell him that this opinion has these mistakes. Never reveal that. I have this policy. I never let my fellow chartered accountant who is doing the same thing in lesser fees, I will not educate him at all. Never. Whenever a next client comes to me, I will put this particular knowledge to him, that you just go and ask anybody in Indore these 5 questions. If you're satisfied with their knowledge, remain with them. Otherwise, come to me. One has to be very clear on that. Knowledge updation is a cumulative process. अगर हम रुक गए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बेस्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन और ऑर्डिनरी कार्डियक सर्जन में अंतर है। बेस्ट कार्डियक सर्जन कार्डियोलॉजी के अंदर, कार्डियक सर्जरी के अंदर होने वाली कंटिन्यूअस रिसर्च प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है। पहले वो कंटिन्यूअस बीटिंग हार्ट सर्जरी पे जाता है, फिर वो रोबोटिक सर्जरी पे जाता है, फिर वो लेस इन्वेजन सर्जरी पे जाता है। उसकी फील्ड में हो रहे जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो उनको एक्यूमुलेट करता है, नए तरीकों को अपनाता है और आगे जाता है। आज एआई आने के बाद अगर हम ओपिनियन बनाने में एआई की सहायता नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम उसी फीस के हकदार हैं जो फीस हमको मिल रही है। ICAI, AI in ICAI. Lot many seminars are being conducted. Wonderful speakers are coming. Young generation is taking over this AI. If we do not become AI enabled, how can we charge fees here? That's a very important and interesting point. Assessments. I'm not taking care of those assessments. Charitable trusts. Somebody was passing remarks that for charitable trust, this much fees. Who charges this? We have to charge this. And I am not agree with this fee structure of company law and LLP. Because lot of responsibilities on our shoulder. Filing application is okay. Incorporation of a private limited company and LLP, what 35,000 is given here, 25,000 given, 18,000 given, people says, अरे सर थोड़ी फीस चार्ज कर, 35,000 कौन देगा, 25,000 कौन देगा, 18,000 कौन देगा। क्लास ऑफ सिटीज भी दी हुई है, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पीछे उन्होंने क्लास ऑफ सिटी भी दी हुई। कौन देगा इतना, अरे कोई भी नहीं देगा, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। सर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के साइट पर जाइए, डिसिप्लिनरी केसेस उठाइए
और शुरू के 10 डिसिप्लिनरी केसेस जो अभी अभी सेटल हुए हैं इस साल में, उन 10 डिसिप्लिनरी केसेस को उठा के पढ़िए। उन 10 डिसिप्लिनरी केसेस में आपको पता चलेगा कि कम से कम 6 डिसिप्लिनरी केसेस जो है कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड ही, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोषी माना गया। एक ही पते पर 10-10 कंपनियां रजिस्टर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दोषी पाया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। अब उसके बाद भी अगर हम कहें कि नहीं साहब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में इतना थोड़ी काम है, सर है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन अपने आप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंटर साइन लगते हैं सर इनकॉर्पोरेशन फॉर्म पे। अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिसिप्लिनरी एक्शन में लिया गया कि रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब आप देखिए कि लापरवाही की हद क्या है। जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में जो रेंट एग्रीमेंट लगा हुआ है, वो रेंट एग्रीमेंट जिस प्रेमाइसेस का है उसका पता और रजिस्टर्ड ऑफिस का पता अलग अलग, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काउंटर साइन कर रखे। तो अब 2,500-3,000 रुपए में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, एक्सक्लूडिंग द कंपनी फीस, तो ऐसे ही काम होंगे। रेंट एग्रीमेंट का पता मैच ही नहीं हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस के पते से, और हम बोल रहे हैं ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। आप देखिए ना, इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स में डिसीजन देखिए आप, डिसिप्लिनरी कमेटी का डिसीजन है, एक ही पते पे कुछ 35 कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। एक डिसिप्लिनरी है कि लिस्टेड एंटिटी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का पता दिया हो, वो रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं। Quality of service is going to hamper with the fees. So this first hour which I have taken for the fees is just to enlighten how can we charge fees and how much fees can be charged and what should be attitude of ours while charging the fees. That is important. Now we should move that some ethical requirements while we are determining the fees. So now the second part we are coming, how to determine the fees and what are the provisions relating to fees. What our code of ethics says. Sir, our code of ethics says 330.3A1, that's an explanation. Level of fees quoted might impact the professional accountant's ability to perform the professional services in accordance with professional standard. A professional accountant might quote whatever fee is considered appropriate. Quoting a fee lower than another chartered accountant is not in itself unethical. However, level of fees quoted creates a self-interest threat to compliance with the principle of professional competence and due care if the fee quoted is so low that it might difficult to perform the engagement in accordance with applicable technical and professional standards. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में ये शिकायत की, नहीं मैं एक रियल केस लेता हूं, इंस्टीट्यूट के पास नोएडा की एक अथॉरिटी ने डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास शिकायत की कि साहब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के कारण 2 बार हमारी टेंडर प्रोसेस फेल हो गई। पहली बार हमारी टेंडर प्रोसेस इसलिए फेल हुई
क्योंकि हमने जो फीस कोट करने का कहा था, इन्होंने फीस कोट की है 10 रुपीज पर बैलेंस शीट। कोई होगा पब्लिक एंटिटी जिसमें बहुत सारे ऑडिट्स होंगे, छोटे छोटे ग्राम पंचायत या शेड्स या कोई मध्याह्न भोजन या आंगनबाड़ी, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें बहुत सारे क्लस्टर्स थे जिनका ऑडिट करना था। सर इन्होंने पर एंटिटी फीस कोट की है 10 रुपीज। तो हमने कहा सर ये काम तो क्या, देखो 10 रुपीज कोई होती है कि चीज, इसमें तो क्या क्वालिटी मेंटेन होगी। सो वी हैव अगेन issued tender, and surprise to our notice, this firm has now charged one। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये केस है। आप डिसिप्लिनरी केसेस में जाके इस केस को रेफर कर सकते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप रेफर कर सकते हैं। अथॉरिटी इंस्टीट्यूट को शिकायत कर रही है कि आपके मेंबर की वजह से हमारी टेंडरिंग प्रोसेस हैम्पर हुई 2 बार। अब इंस्टीट्यूट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये पूछती है कि आपने 1 रुपए और 10 रुपए में जो बैलेंस शीट साइन करने का गौरवमयी निर्णय लिया है, क्या आप हमें जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस 1 रुपए और 10 रुपए में आपने ये निर्णय क्यों लिया? उस फर्म का जवाब आया, वो भी लाजवाब जवाब था। वो जवाब ये आया कि साहब हमको तो इस फील्ड में एक्सपीरियंस लेना था, हमारी फर्म ने आज तक ऐसे कोई काम किए नहीं है, तो हमें तो ये काम करना था, तो एट एनी कॉस्ट हमको तो ये लेना था, इसलिए हमने 1 रुपए पे ले लिया, क्वालिटी तो हम पूरी देंगे। इंस्टीट्यूट का कहना है रिक्वायरमेंट, ऐसे रिक्वायरमेंट जो आपकी है कोड ऑफ कंडक्ट वॉल्यूम 1 की, वो तो साफ तौर पे कह रही कि फीस ऐसी कोट करो ताकि आप ये जस्टिफाई कर सको कि भाई साहब हमारी क्वालिटी कहीं से भी प्रभावित नहीं होने वाली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई लेवल ऑफ फीस शुड बी such that I can give quality services. It's very important. And if the fee level is set by independent third party or regulatory body, and if it is low, kindly don't accept the assignment. अरे क्या करें, आरबीआई से ही फीस कमा रही है, क्या करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीस ही कमा रही है। ग्वालियर के पास एक मैटर आया था कॉन्करेंट ऑडिट। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में 40 करोड़ का घोटाला निकला, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नोटिस आए, कॉन्करेंट ऑडिटर को नोटिस आया कि आपने सोसाइटी का ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का ऑडिट करने के लिए कॉन्करेंट ऑडिट की फीस क्या चार्ज की। सरप्राइज टू नोट, इट वाज जस्ट 5,000 और 6,000 पर मंथ। ना 5,000 और 6,000 पर मंथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव बैंक का, जो उस जिले का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी 5 ब्रांचेस और उनकी फीस आपकी 6,000 रुपये महीना, कैसे जस्टिफाई हो सकती है? मेंबर कहता है मैंने थोड़ी डिसाइड, अथॉरिटी ने डिसाइड करके भेजी। सर अगर अथॉरिटी भी डिसाइड करके भेज रही है और अगर आपको नहीं जम रही है तो आप क्यों ले रहे हो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए सर्व शिक्षा अभियान की फीस दे रहे हैं वो, आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट की फीस दे रहे हैं वो, मध्याह्न भोजन की फीस दे रहे हैं वो, तो पहली बात तो ये
कि हम सबको मालूम है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर अगर हम ऑडिट पे जाते हैं तो गवर्नमेंट लेवल पर रिकॉर्ड्स की स्थिति क्या है। और जो रिकॉर्ड्स की स्थिति दिखती है उस हिसाब से आप ये भी देख लीजिए कि उसकी रिस्क क्या है। मैं तो कहता हूं जरूरत ही क्या है, मत ही करो ना। व्हाई टू हैव दैट ऑडिट, करने की जरूरत ही नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अथॉरिटी ने फिक्स कर दिया है, लेट अस डोंट इन्वॉल्व आवरसेल्फ। अच्छा, ऐसा एटीट्यूड रखना कि सर 2,000 रुपए का है तो यार ले लो यार, आर्टिकल को भेज देंगे वही कराएगा। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल को भेज देंगे वही ऑडिट करके आ जाएगा, देन व्हाई वी आर चार्जिंग सच लो फीस। आर्टिकल अगर काम करके आ जाएगा, ये अगर हमारा एटीट्यूड है, तो फिर हम सर्व शिक्षा अभियान का ही ऑडिट ले लें। आई डोंट थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ एटीट्यूड। क्या है, आर्टिकल को भेज देंगे, एक एम्प्लॉय भेज देंगे, कराएगा, निपटाएगा, थोड़ा तो पैसा आएगा, ऑफिस चल जाएगा। सर ऑफिस चलाने के लिए इस तरीके के काम लेने की, और फिर बाद में जो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होते हैं इनके, जब बड़े बड़े घोटाले निकलते हैं तो हमारे ही साइन में हम वहां घूमते हुए पाए जाते हैं। सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग सच असाइनमेंट्स। अगर वो लोग नहीं सुधरना चाहते, मत सुधरने दीजिए, हमें उन्हें सुधारने का ठेका भी नहीं ले रहा। मैंने सुना है कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं कि पहले तो आपके अकाउंट्स रीराइट करवाएंगे किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जब वो अकाउंट्स रीराइट हो जाएंगे उसके बाद हम उसका ऑडिट करेंगे, और रीराइट करवाने की फीस वो अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो देंगे और हम उसको करेंगे। हाँ, दैट इज ओके। अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट राइटिंग दोज accounts and then we are conducting an audit, it's okay. But don't involve your firm in writing the accounts and then auditing. Self review threat is there, बनाएंगे भी हम ही और ऑडिट भी हम ही करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। मान लीजिए कल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने और वहां कोई घोटाला पकड़ा गया, और उस घोटाले में बैलेंस शीट सामने आई, और वो बैलेंस शीट बहुत ही प्रोफेशनली ड्राफ्टेड बैलेंस शीट दिखी, और उन्होंने पूछा कि ये बैलेंस शीट किसने बनाई। उन्होंने कहा हमारे ऑडिटर साहब आते हैं, उन्होंने ही बनाई थी, हमने तो ये हिंदी में बनाई थी, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी तो ओरिजिनल ही है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आए, इन्होंने कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर अपलोड किया, उसके बाद उसकी पूरी अकाउंटिंग करी, और अकाउंटिंग करने के बाद उन्होंने उस पर लेके साइन किया। अगर ये पर्टिकुलर चीज रिकॉर्ड पे आती है तो सर ये मिसकंडक्ट है, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। सो दिस इज समथिंग नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। देन contingent fees. Contingent fees means fees which will be in percentage of something. Although in our second part of Code of Ethics, they have given us certain exemptions that we can charge less fees, and those exemptions are here. We can charge fees in percentage of finding, or percentage of result, or percentage of benefit. In case of receiver or liquidator, we may charge fees based on percentage of realization. In case of cooperative society, we may charge fees based on percentage of paid up capital or working capital, or gross income or net income. In case of valuer, for the purpose of direct taxes, fee may be based on percentage of the value of the property valued. In case of certain management consultancy services, it may be decided by the resolution of council from time to time.
The fee may be based on percentage basis, which may be contingent upon the findings or result of such work. नॉन ऑडिट फीस की बात कर रहे हैं. In case of certain fundraising services, fee may be based on percentage of fund raised. In case of debt recovery services, fees may be in percentage of debt recovered. In case of self services related to cost optimization, the fee may be based on percentage of benefit received. If I reduce your total cost, I'll charge a percentage of the benefits. Any other service or audit, as may be decided by the client. But mind it very carefully two things. Council, pursuing to the authority vested in clause H mentioned above, has the following circumstances permitted charging of the fee based on percentage of profit or contingent upon finding as a result of such work. Charging of fees by member enrolled as insolvency professional under either individually or entity. आप percentage of profit ले सकते हो. Fees for rendering non-assurance services to non-audit client. This is very important. If I am giving services to my client, of which I am not conducting audit, so he becomes non-audit client. If I am rendering non-assurance service to non-audit client, it would be treated as what? It can be given. It may be percentage of profit, but it cannot be non-assurance service to audit client, and it cannot be assurance service to client. Assurance, non-assurance service to non-audit client. That is very important. Referral fees. Yes. Let's see. Whether referral fees in itself creates threat. For example, मैं किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर और वो लिस्टेड कंपनी is in search of a very good internal auditor. I can suggest internal audit firms. Now what I want to do, मैं इंटरनल ऑडिट फर्म तो लेकर के आ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो इंटरनल ऑडिट फर्म आ रही है, मैं उसको कह रहा हूं बॉस, मैंने आपको रेफर किया है क्लाइंट, अब जो भी फीस बन रही है ना इसकी, उसका 20% आप मेरे को. क्या ये चलेगा? मेरे ऑडिट क्लाइंट को, चूंकि मैं तो 144 के हिसाब से सर्विसेज दे नहीं सकता, अब वो जो 144 में जितनी सर्विसेज दी हुई हैं, मैं वो सारी सर्विसेज को दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोल रहा हूँ आप लोग दे दो, मैं तो दे नहीं पाऊंगा. अब आप लोग एक काम करो, आपकी जो भी फीस आ रही है उसमें से 20% मेरे को दे. नो, यू कांट डू दैट, बिकॉज रेफरल फीस और रेफरल कमीशन इन इटसेल्फ क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. आपको वो सर्विसेज देने को मना क्यों किया था? दो कारणों से. Either it will be a self review thread or there will be a self interest thread. When from a single client you are getting more and more money, that itself hurts the independence. So in this case, what they are saying is, if fees received as a referral fees, it's an extra amount. And if that extra amount is significant,
that can create a self-interest threat. That's why they are saying a self-interest threat to compliance with the principle of objectivity and professional competence and due care is created if professional accountant pays or receives a referral fees relating to a client. Such referral fees may be, for example, a fee paid to another professional accountant for purpose of obtaining new client work when the client continues as a client of existing accountant but requires special services not offered by the accountant. वही तो मैं बता रहा था. And a fee received for referring continuing client to another professional accountant or expert where the existing accountant does not provide those services. And these can create what? Self-interest threat. Hence, referral fees are not allowed. But mind it very carefully. If you are not giving assurance services, you can refer. Because when independence is not required, you can have referral fees. If you are doing accounting work for any entity, account outsourcing, you can obtain referral fees for other works. That is important. Now, this is the talk of the hour. बहुत बवाल हुआ था इस पर. Firms are required to comply with the fundamental principle of independence and apply the conceptual framework which is set out in section 120. And you have to address the threats. The nature and level of fees or other type of remuneration might create a self-interest threat. अब मान लीजिए एक ही ग्रुप से मिलने वाली जो फीसेस वो इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट बना रही हैं वो सारी फीस मिलकर कि दे इन देमसेल्फ क्रिएटिंग दी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज जो हैं उनमें इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंश्योर करनी होती है. तो वहां पर ऐसे 265 ने ही हमको बोल के रखा हुआ था दैट यू हैव टू फाइल अ सेल्फ डिक्लेरेशन विद द मैनेजमेंट एंड दोस्त शेयर विद गवर्नेंस दैट योर नॉन ऑडिट फीस billing for non-audit fees and billing for audit fees is not affecting your independence. वो तो एक बात थी. अब मान लीजिए नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है जिसमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा, प्राइवेट पैसा है. क्या मुझे डिस्क्लोजर देने की जरूरत है जब मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूं कि भाई साहब आपसे जो फीस मुझे मिल रही है वो मेरी टोटल रिसीट का इतना परसेंट. कहते हैं आपको ये देखना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि जब ऑडिट आप ले रहे हो. अब मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का ऑडिट करने जा रहा हूँ, रीअपॉइंटमेंट ले रहा हूँ और उस रीअपॉइंटमेंट के टाइम में ये लेटर दूं कि मैं आपकी कंपनी का ऑडिट ले रहा हूँ लेकिन आपके द्वारा दी जा रही फीस मेरी टोटल रिसीट का 50%. एंड स्टिल आई एश्योर यू दैट आई एम इंडिपेंडेंट. ये मैटर बहुत उठा था 1 साल पहले. दिस मैटर वॉज अ वेरी बिग मैटर. अभी हम भूल गए
बट रिक्वायरमेंट क्या है मैं याद दिला दूं. Where for 2 consecutive years, the total gross annual professional fees from the audit client and its related entity represents more than 15% of the total fees received by the firm, expressing the opinion on financial statement of the client of the firm shall disclose to those charged with governance of the client that for last 2 consecutive years the total such fees represent more than 50% of the total fees received by the firm. इस पर हम सब ने ऑब्जेक्शन लिया कि यार ये 15% का क्या क्राइटेरिया है, तो बहुत ही कम क्राइटेरिया है. अब इंटरनेशनली तो यही क्राइटेरिया है कि अगर टोटल फीस का 15% आप रिसीव कर रहे हो एक पर्टिकुलर क्लाइंट्स, तो आप उसको डिस्क्लोज करो. Provided that no such ceiling of the total fees of the firm would be applicable, where such fees does not exceed 5 lakh rupees. ठीक है. अब इस पर जब बहुत बहस हुई तो ये प्रोविजन बदल कर आया, और ये प्रोविजन जो बदल कर आया वो ये आया. Where an audit client is not a public interest entity and for 2 consecutive years the total gross annual professional fees from the client and its related entities represents more than 40% of the total fees received by the firm, expressing the opinion on financial statement of the client, the firm shall disclose to the institute, not to the management, disclose to the institute the fact that 2 consecutive years, the total such fees represents more than 40% of the total fees received by the firm, provided that no such ceiling on total fees of the firm shall be applicable when total fees of the firm does not exceed 20 lakh rupees in respect of firm, including fees received by the firm or other services rendered to the medium of different firm of firms in which such member or firm may be partner or proprietor. They have entirely changed this code. ICAI Council, they did it. God knows till when we have this change. One day, some authority may come and say, why don't you apply international standards? Apply international standards. But till then, we have this. If it continues to exceed 40% after 2 years, firm shall each year disclose to the institute the matter set out in paragraph. We have somewhat diluted this reporting responsibility. We are giving to our monitoring agency. Let the ICI monitor our independence rather than the client monitor our independence. That is the difference which we are facing here. In case of not a public interest entity. Now, if we are auditor of a listed entity, then what is going to happen? This particular threshold of 40% comes to 20%. And that 20 lakh comes to 25 lakhs. That is the change which they have come up. And this is the requirement of the fees that Abhi, right now, what kind of requirement we have? We have to inform ICI.
if our total fees is more than 20 lakhs. And we are auditing client, which is not a public entity, and the gross annual professional fees from that client and its related entities group is more than 40% of the total fees received by the firm. We have to give intimation to ICA, and below 20% in case of public interest entity. Now, very interestingly, Institute had come up with the uh, FAQs also. Those FAQs are there at the website of ICI, and you can refer the FAQs there. Ashish ji, are there any question to be addressed by me? Uh, yes, sir. There are some questions from the members, and we are, sir, just requesting Satish Tomar, sir. Gaurav Garg, sir, is there, huh? Yes. Yes. I'm just requesting him to take up. Sir, have you received those questions? No, sir. Please, can you please Yeah. give me? What is the participation number today, Ashish bhai? Sir, near about 1,000, sir. 1,000. Oh, great. Yes, sir. Yes, sir. It's a good number, sir. Sir, just a minute, Satish, sir. We are sharing on your mail, sir. Okay. Can you please WhatsApp? Yeah. WhatsApp also we are sending. Okay. Sir, we have sent, sir. You have sent on mail or WhatsApp? The WhatsApp also, sir. Sir, mail also. I have not received as yet. So today the enablers are Noida branch. Yes, sir. Yeah, it's great. Yes, sir. I have received now. So the first question is, fees for assignments such as concurrent audit of banks is decided by the auditee. For the work involved, the fees is minimal in most cases. How do we overcome this? Sir, I have addressed this that
we cannot compromise with the quality. Once we all reject this particular fees, then only the fees bar will be increased. Collectively efforts we need to do, otherwise what is going to happen in this 6,000 per month fee for 5 branches? I don't think that's an acceptable proposition. So we should reject it. And whenever we are rejecting it, we should be vocal about it that I am rejecting this particular concurrent audit. Matlab this, but not without naming the entity, but we should be vocal about it in our groups that we are rejecting this kind of concurrent audit, and we advise that no one should take this particular audit in this particular fee. That is required from our side. Okay, sir. So our second question is, despite all efforts from ICI, there is a huge undercutting in fees due to fierce competition in practice. How ICI do counter such malpractices? ICI is countering such malpractices by issuing them notice that if a member complains to ICI that some member is charging very low fees, or institute from some sources comes to know that a chartered accountant is charging very minimal fees in which it is not possible to maintain the quality. For example, 250 rupees में एक बैलेंस शीट साइन हो रही है, तो 250 रुपीज में इंदौर में बैठकर अगर एक बैलेंस शीट साइन हो रही है ग्राम पंचायतों की, तो मैं बोलूंगा ग्राम पंचायतों को वो बैलेंस शीट बनाकर आप जो कुरियर करेंगे, वो कुरियर करने की कॉस्ट भी 250 रुपए से ज्यादा हो जाएगी. तो हाउ कैन यू चार्ज 250 रुपीज एंड इंश्योर द क्वालिटी? सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज हैमरिंग इट continuously. If they receive any information that the that firm has accepted the audit at a very lower fees, they are issuing notice to justify how a chartered accountant is maintaining quality in that particular. There are a lot many notices. Okay, sir. So next question is, nowadays filing of return and some advisories are done online by various e-commerce portals, and they are charging petty amount and clients are attracted towards them. How to convince client or attack client in that case? Client will automatically convince within next 2 years when the notices will come from the income tax department to them for wrong filing of returns and not qualitative returns. We all know what kind of quality those returns are being filed. And if let me complete. यार ये 100 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए देने वाले छोटे छोटे क्लाइंट्स जो हैं, ये उन्हीं को जाने दो ना. इनका हेडेक हम पाले ही क्यों? हम उनका हेडेक पालें जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो जो एक रीजनेबल लेवल के ऊपर हमको फीस दे सकते हैं, जिनके ट्रांजेक्शन्स बहुत हैं. अगर वो भी अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ जाते तो हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि सर आप जरा एक बार ध्यान रखना, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप चले जाओ, आप वहीं से फाइल कर लो, लेकिन उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो एक अलग चीज है. वो आ ही रहे ना नोटिस, कितने नोटिस आ रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं. Yes. And next question is there any standard set for quoting salary for CA employed working in private limited company? See, in private limited company, as far as campus is concerned, institute, while giving job to new and fresh chartered accountant, they have set this particular bar over the campus interviews that minimum this much salary you have to give to fresh chartered accountant. Now for developing salary structure for chartered accountant according to their experience, it is very difficult because different entities, different industries, different norms. It is very difficult to determine that. But yes, it's a good suggestion that we should have at least minimum salary for chartered accountant according to his experience also. That's a good suggestion. We should give it to Anuj Bhai. Let him take this to council. Okay, sir. So next question is, sometimes fees pending is not undisputed audit fees and there is no way to receive it. Upon change of assignment, how to deal with such scenario? Look,
non-receiving of fees, and that too undisputed. The next, if he is changing chartered accountant cannot accept that particular assignment without clearance of my dues. And if he does so, it's a misconduct, it's a major misconduct, and it will come under the second schedule. And there are hefty penalties and things are there for not ensuring that my fees is paid. It's a misconduct under clause number 2 of the second schedule of the part second of the second schedule. So there can be a complaint from a chartered accountant that my fees is not received and other chartered accountant has accepted the assignment. Yes, sir. So the last question is, in case of tenders, one is not allowed to respond except if minimum fees are prescribed in the tender. Should estimated cost be treated as minimum fees? No, they have to specify the minimum fees. If minimum fees is not quoted, we should not respond to that tender. If no one of us respond to that tender, they need to reissue the tender related to audit by putting the minimum fees or bring this particular matter to the attention of the ICAI. Officials will definitely going to communicate to that particular authority that whenever you are issuing tender, kindly quote your minimum fees. Otherwise, no member is going to respond to that tender. And it happened in past. 2, 3 authorities have been informed from the ICAI that you should not issue the tenders which does not contain a minimum fees because our member are not going to respond for that. Okay, sir, that's all for the questions. So Ashish bhai, So thank I you, sir, think I for think fees पे इससे ज़्यादा discussion होना मुश्किल है. Right, sir. So thank you, enablers, Noida branch, Tomar Saab, and tech support team, Tanika, Ashish bhai, Rashmi, everyone out there at Ethical Standard Board, Anuj bhai in his absentia, and all listeners, thousands. It's a good capacity at this election and kind of relaxation after the last date. So 1,000 attendance is good. I think we had a fruitful discussion. Thank you very much. Thank you, Noida branch. Thank you, Ashish bhai. Thank you, Ethical Standard Board. And nonetheless, Anuj bhai. Thank you. thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your wonderful session, sir. And thank you for the Noida branch also for your support. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.